Praise the name of the Lord. Glory to the wonderful name of Jesus of Nazareth. Hallelujah. Lord, we bless you. Lord, we praise you. Hallelujah. We praise your holy name, Jesus of Nazareth. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus of Nazareth. Thank you, Jesus of Nazareth. Thank you, Lord Jesus. We bless your name, King of glory. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus of Nazareth. Thank you, Jesus. Thank you, King of glory. Thank you, King of glory. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Give you praise, Jesus. Lord, we give you praise. We give you honor, Lord. We give you glory. Lord, we magnify you. Hallelujah. Lord, we magnify your holy name. We magnify your holy name. Jesus Christ, King of glory. We magnify your name. Jesus Christ, King of glory. We magnify your name. Jesus Christ, King of glory. We magnify your name. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, we bless your name, bless your name, bless your name. Bless your name, bless your name. Lord Jesus, we bless you. Praise you, Jesus of Nazareth. Praise you, praise you, praise you, Lord. We praise your name, Jesus. Praise your name. Hallelujah. Praise your name, Lord. Praise your name. Hallelujah. Thank you, Jesus. शालोम सबको जय यीशु मसीह की। और आप सबको मेरी आवाज़ आ रही होगी। Is the volume proper? Please inform me if the volume is proper. Hallelujah. Thank you, Jesus. आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। Yahushua HaMashiach, we magnify you. Yahushua HaMashiach, we magnify you. Yahushua HaMashiach, we magnify you. Yahushua HaMashiach, we magnify your name. Yahushua HaMashiach, we magnify your name. Yahushua, King of glory, 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 we magnify your name. Yahushua, we magnify your name, magnify your name, magnify your name. Yahushua HaMashiach, we magnify your name. Hallelujah. Lord Jesus, as we meditate on your word, Lord, your Spirit will teach us. Lord, you will teach us the deep things so that a relationship with you is deepened. Lord, so that we walk deeply with you. Lord, through your blood, I pray, through your blood, Lord, we do everything through your blood. And we do everything in your name, Lord. Thank you. Thank you, King of glory. Thank you, King of glory. We bless your name. Thank you, King of glory. Majestic King, we bless your name. We bless your name.
We bless your name, majestic King. We bless your name, majestic King. We bless your name. Hallelujah, hallelujah. Lord, I pray that your Spirit will fall upon us as we study your word, as we worship you and adore you. Your Spirit will fall upon us. Lord, that you will open the deeper recesses of our persona, that we receive your word, that we honor your word, that we do not live in sin anymore, that we do not walk in rebellion. Lord, we live for you. We live for you, Lord. I surrender my soul to you, Lord Jesus. I surrender my heart to you, Lord Jesus. I surrender my body. I surrender my whole being. I surrender my whole family. Lord, I surrender everything that I am made of, everything that I am composed of, everything that I possess. I surrender to you, Lord Jesus. That everything, all that I am and all that I have will serve you, Lord. तेरा धन्यवाद हो प्रभु। हम अपने संपूर्ण जीवन आपके चरणों पे रखते हैं, अपनी रूह जिस्म जान को आपके पवित्र चरणों पे रखते हैं प्रभु। प्रभु, मैं आपका लहू, आपके लहू की कुदरत को खोलता हूँ आपके लोगों के ऊपर। यीशु मसीह, आपका नाम ऊंचा हो, यीशु मसीह के जलाली नाम में, आमीन। हालेलुया। जो स्टडी हम सुबह कर रहे थे उसको हम कंटिन्यू करेंगे। वी आर गोइंग टू कंटिन्यू व्हाट वी बीन लर्निंग सिंस मॉर्निंग। हालेलुया। मैं एक वचन आपको देना चाहता हूँ। मेरे साथ निकालिए, अपनी बाइबल खोलिए और जॉन्स गॉस्पल, टर्न टू जॉन्स गॉस्पल, जॉन्स गॉस्पल चैप्टर नंबर 1। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, यूहन्ना का पहला अध्याय, जॉन चैप्टर नंबर 1, and we will meditate on verse number 18। मैं आपके लिए एक स्पेशल वर्जन में से पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। No one has ever seen God at any time. The only unique Son, or the only begotten God, who is in the bosom, in intimate presence of the Father. He has declared him, he has revealed him, and brought him out where he can be seen. He has interpreted him, and he has made him known। आप देख रहे होंगे ये बहुत लंबी ट्रांसलेशन है। दिस इज कॉल्ड द एम्पलीफाइड वर्जन। ये एम्पलीफाइड वर्जन है बाइबल का, इंग्लिश में ये ट्रांसलेशन मिलती है और बहुत सारे मॉडर्न प्रीचर इसे बहुत हाईली रिकमेंड करते हैं कि ये बहुत डीप मीनिंग इसके अंदर हैं और बहुत क्लोज है टू द ओरिजिनल टेक्स्ट और बहुत ज़्यादा शेड्स ऑफ मीनिंग देती है, एंड इट गिव्स यू मोर मीट टू अंडरस्टैंड, मोर मीट टू ईट एंड मोर सेंस टू अंडरस्टैंड। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके अंदर क्या लिखा उन्होंने। इसके अंदर लिखा है द ओनली बिगॉटन गॉड, परमेश्वर जो पैदा हुआ। आज एक उसी विषय पे बहुत अद्भुत शिक्षा हम लेने जा रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि आप बड़े ध्यान से प्रभु के वचन का अध्ययन करेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक सर्वे किया गया। उस सर्वे में एक क्वेश्चनियर था, वो प्राइमरली बैप्टिस्ट सर्कल ने किया। जितनी बैप्टिस्ट चर्चेज हैं, दे आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बैप्टिस्ट चर्चेज इन स्टेट्स। तो क्वेश्चन ये था, सवाल ये था, यहाँ पे हम पढ़ते हैं इस वर्जन में जो मैंने अभी आपके लिए पढ़ा, वर्स नंबर 18, यहाँ पे लिखा बिगॉटन गॉड, परमेश्वर पैदा हुआ। तो सवाल ये था, वॉज गॉड बॉर्न? क्या परमेश्वर सचमुच में पैदा हुआ? दिस वॉज द टॉप क्वेश्चन इन द क्वेश्चनियर, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो that 99% of the Baptist parishioners
answered it incorrectly. कुछ लोगों ने जवाब दिया कि नहीं, सन ऑफ गॉड पैदा हुआ। मरियम की कोख से क्या परमेश्वर पैदा हुआ? बताइए आप मुझे। क्या मरियम ने परमेश्वर को जन्म दिया? इज मैरी द मदर ऑफ गॉड? बताइए। डिड मैरी ब्रिंग फोर्थ गॉड इन टू द वर्ल्ड? इसका राइट आंसर है मरियम के द्वारा परमेश्वर पैदा नहीं हुआ। मरियम स्वयं परमेश्वर के द्वारा पैदा की गई है। God was not born. God has no birth. God has no beginning. God is ageless. God is eternal. He is infinite. He has no beginning, no end. He is a spirit being. तो मरियम की कोख से पैदा हुआ गॉड मैन। हालेलुया। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय के 5 वचन से जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ये कह रहा है, जब वो जगत में आ रहा है, यीशु मसीह कह रहा है, होम बलि और मेल बलि से तू प्रसन्न नहीं होता, पर एक देह तूने मेरे लिए तैयार की है। तेरी पुस्तक में है यहोवा परमेश्वर, मेरे लिए सब कुछ लिखा है, देख मैं तेरी इच्छा पूरी करने के लिए आता हूँ। मरियम की कोख में यीशु मसीह की ह्यूमैनिटी पैदा हुई। यीशु मसीह की डिविनिटी, यीशु मसीह की गॉड हेड कभी पैदा नहीं हुई। यीशु मसीह इटर्नल है। जैसे पिता अनंत है वैसे प्रभु यीशु मसीह अनंत परमेश्वर है, अजन्मा है, अगोचर है, अनादि है, जिसका ना आदि है ना अंत है। ये रोमन कैथोलिसिज्म की कोर टीचिंग है। रोमन कैथोलिक चर्च मरियम को परमेश्वर की माता मानती है, which is absolutely incorrect teaching, absolutely incorrect teaching। मैं आपको आज सुबह बता रहा था कि बाइबल के अंदर एक ऐसा कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया। मैंने आपको बताया सुबह कि कैसे बाइबल ट्रांसलेट हुई। अगर आपको याद हो कि बाइबल लैटिन में थी, लैटिन वर्जन था इसका, जिसे वल्गेट कहा जाता है, जो सबसे एंशंट बाइबल का जो फाउंडेशन थी, बाइबल की सारी किताबों की जो फाउंडेशन थी, उसका नाम है टेक्स्टस रिसेप्टस। वो मैं भी आपको आगे थोड़ा बताऊंगा। टेक्स्टस रिसेप्टस जो ओरिजिनल, दिस इज द ओरिजिनल वर्क, all the biblical scholarship, all the early resources that were inspired by the Spirit of the Most High God, they were compiled together. When they were put together, this was called Textus Receptus. Textus Receptus, the text that was received from God. The early church had this. पहली कलीसिया के पास यही था। पहली कलीसिया के पास Textus Receptus था। और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे कैसे परमेश्वर के कलाम को करप्ट किया शैतान ने। मैं आपको बता रहा था लूसीफेरियन टीचिंग के विषय में। लूसीफेरियन जो टीचिंग है बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि लूसीफेरियन टीचिंग में एग्जैक्टली बाइबल को वो लोग यूज़ करते हैं। दे यूज़ द बाइबल। और आपको मालूम वो क्या कहते हैं? वो लूसीफर की पूजा करते हैं। They did not believe that Lucifer fell. They don't believe that Lucifer disobeyed God. They believe that Lucifer is the real illumination and Lucifer is the source of the truth. परमेश्वर का सत्य है और परमेश्वर की असली ज्योति लूसीफर से मिलती है। वो लोग ये प्रीच करते हैं। आपको मालूम बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? रेवलेशन 22 के 16 में, रेवलेशन 22:16 में जीसस सेज, आई एम द ब्राइट एंड द मॉर्निंग स्टार। आई एम द ब्राइट एंड द मॉर्निंग स्टार। आई टोल्ड यू about the morning star, how it depicts Venus that rises up very early in the morning. That is why it is called the day star. तो यीशु मसीह कहते हैं, आई एम द ब्राइट एंड द मॉर्निंग स्टार। और मैंने आपको बताया कि
जो लूसीफर था उसका असली नाम है हीलियल, और वो केरुबीम है, केरेब हिब्रू वर्ड है, केरेब। वो एंजल नहीं है एक ऑर्डिनरी, ही इज ए केरुबीम, केरेब, दैट्स द ओरिजिनल वर्ड। तो कन्फ्यूजन कहाँ पे लूसीफेरियन क्रिएट करते हैं? वो जीसस जहाँ कहते हैं आई एम द ब्राइट एंड द मॉर्निंग स्टार, द सेम थिंग दे अप्लाई टू लूसीफर। जहाँ पे लूसीफर के विषय में लिखा है, अगर आप पढ़ेंगे 28 अध्याय एजिकियल और 14 चैप्टर आइजाया, दैट ही इज द सन ऑफ द मॉर्निंग, सन ऑफ द मॉर्निंग, हालेलुया। बिने हा शखर, शखर जो है वो मॉर्निंग को कंट्रोल करने वाला कैनानाइट गॉड है, और इसको उसका बेटा करके दिखाया गया वहाँ पे टेक्स्ट के अंदर। बट हिज ओरिजिनल नेम इज हीलियल, एंड देन हीलियल दे ट्रांसलेटेड एज लूसीफर। बाइबल इज हिब्रू बाइबल, दिस इज हिब्रू बाइबल। ऑडेसिटी देखिए, हिब्रू बाइबल के अंदर रोमन कैथोलिक चर्च ने अपना एक लैटिन वर्ड डाला हुआ है, लूसीफर, एंड दे डोंट वांट पीपल, लोगों को नहीं चाहते कि लोग जाने कि उसका असली नाम हीलियल है, पर उन्होंने उसका नाम क्या रख दिया है? लूसीफर। ये बड़ी एज लॉन्ग कॉन्स्पिरेसी है लूसीफेरियनिज्म की। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो आप देखते हैं ना एम्प्लीफाइड वर्जन में गॉड इज बिगॉटन बता रहे हैं, दैट्स एब्सोल्युटली फॉल्स, एब्सोल्युटली इनकरेक्ट टीचिंग। हालेलुया। मैं अब आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे बाइबल की इंग्लिश में नई नई ट्रांसलेशन आती रही। सुबह मैं आपको बता रहा था कि कैसे किंग जेम्स वर्जन 1611 में, हाउ द किंग जेम्स वर्जन हमारे हाथ में कैसे पहुंचा। और मैंने आपको बताया कि कितने प्रभु के दासों ने, मार्टिन लूथर ने उसे इनिशिएट किया, और उसके बाद विलियम टिंडल और जॉन हस, जेरोम ऑफ पराग, जॉन विक्लिफ, ज्विंगली, जॉन एलन, जॉर्ज क्रॉफ्ट, और पॉल ऑफ सेंट विलियम्स, और थॉमस एम्परसन, जॉन एलन, ये बड़े बड़े खुदा के लोग। ज्विंगली एक स्कॉलरली बंदा जिसे 1531 में मार दिया गया, और विलियम टिंडल को स्टेक के ऊपर बेल्जियम में जला दिया गया। ये लोग बाइबल की ट्रांसलेशन ला रहे थे, करेक्ट ट्रांसलेशन। रोमन कैथोलिक चर्च नहीं चाहती थी कि बाइबल को ट्रांसलेट किया जाए। जो बाइबल को ट्रांसलेट करते थे उन्हें हेरेटिक बोला जाता था। हेरेटिक, मैं सुबह आपको बता रहा था, रोमन कैथोलिक चर्च अपने पैरिशनर को, जितने कैथोलिक थे, उनको कोई भी पुस्तक पढ़ने नहीं देती थी। जो बुक्स लोगों ने पढ़नी होती थी, क्रिश्चियन बुक्स, वो चर्च की लाइब्रेरी से दी जाती थी, और जो बुक उनकी डॉक्ट्रिन को सपोर्ट करती थी, उस बुक के ऊपर वो एक स्टैंप लगाते थे, निहिल ऑब्स्टार्ट, विच मीन्स देयर इज़ नो ऑब्जेक्शन ऑन रीडिंग दिस बुक। अगर किसी इवेंजेलिकल की कोई किताब थी जिसमें वो रोमन कैथोलिक चर्च की डॉक्ट्रिन के संग छेड़छाड़ नहीं करता है, उनके झूठ को उजागर नहीं करता है, उनकी टीचिंग के विरोध में या सच्ची परमेश्वर के कलाम की शिक्षा नहीं डालता, वो उसको पढ़ते थे, फिर उसके ऊपर स्टैंप लगा देते थे, निहिल ऑब्स्टार्ट, दैट वी हैव नो ऑब्जेक्शन विद दिस राइटिंग। तो ये जो 1611 में किंग जेम्स वर्जन आया, इसका रोमन कैथोलिसिज्म ने बहुत ज़बरदस्त विरोध किया, और बहुत सारे लोगों को, प्रभु के दासों को आग के हवाले कर दिया गया, उन्हें अपना लहू बहाना पड़ा। दे गेव ब्लड एंड वेंट थ्रू फायर। तब ये बाइबल जो है आपके और मेरे हाथ में पहुंची है। मॉडर्न टाइम्स के अंदर क्या हुआ, 18वीं सेंचुरी के बाद जब लोग ट्रेजर नहीं करते, परमेश्वर के लोगों के द्वारा किए गए सच्चे काम को ट्रेजर नहीं किया जाता है, पीपल डोंट अंडरस्टैंड देयर वैल्यू, तो क्या होता है भाई और बहनों? परमेश्वर
परमेश्वर के सच्चे कलाम की वैल्यू नहीं करते लोग, और ये नहीं जानते हिस्टोरिकली कि ये बाइबल आप तक और मेरे तक कैसे पहुंची है। आपको मालूम, उन एंशिएंट टाइम्स में जहाँ पे प्रेरित पौलुस बीरियन चर्च की बात करता है, चर्च एट बिरिया, चलो बैजो रामना। हालेलुया। मॉडर्न टाइम्स के अंदर जो बाइबल वर्जन्स ट्रांसलेट किए गए, ऑल न्यू वर्जन्स दैट स्टार्टेड कमिंग, तो मैं आपको बताता हूँ कि उन सब के पीछे लॉजिक क्या थे। लॉजिक ये थे कि परमेश्वर के कलाम की न्यू शेड्स ऑफ मीनिंग हमें मिलेंगी, परमेश्वर के कलाम की और गहराई हम समझ पाएंगे। और कुछ लोगों का ये विचार था, दिस विल मेक द वर्ड ऑफ गॉड मोर कंपैटिबल टू आवर टाइम्स। 18th सेंचुरी, अर्ली 19th सेंचुरी में बहुत सारे बाइबल स्कॉलर ये बिलीव करने लगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर ये धारणा आने लगी कि ये आउट फैशन ट्रांसलेशन है। दाओ, दाए, दी, जो क्रूड किंग जेम्स वर्जन था, ओल्ड एंशिएंट पोइटिकल लैंग्वेज, तो उसको चेंज करने के प्रिटेक्स्ट में और बहुत सारे उन लोगों ने लॉजिक दिए कि अभी इसको कल्चरली रेलेवेंट करना है, कल्चरली रेलेवेंट हो बाइबल हमारे टाइम्स के अनुसार, हमें मॉडर्न लैंग्वेज में इसकी ट्रांसलेशन करनी है, नई ज़ुबान में इसकी हम ट्रांसलेशन करें, एक नई लैंग्वेज के अंदर इसको लेकर आएँ ताकि लोग इसे बेटर अंडरस्टैंड करें, टू मेक इट मोर कंपैटिबल कल्चरली, टू मेक इट मोर अपीलिंग टू द मॉडर्न टाइम्स। वो बाइबल को प्रोलिफरेट करने लगे। और कुछ लोगों का आइडिया था कि हमारी यूथ इसके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रही इन वर्जन्स के साथ, तो हम नए वर्जन्स निकालें जिसके संग हमारी यूथ कनेक्ट हो। तो ऐसे बड़े बड़े लॉजिक दिए स्कॉलर्स ने, और उन्होंने बाइबल की कई ट्रांसलेशन नहीं की। रिवाइज्ड वर्जन 19th सेंचुरी से पहले आ गया, रिवाइज्ड वर्जन। उसके बाद न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन आया 19th सेंचुरी में। फिर हम पढ़ते हैं न्यू इंटरनेशनल वर्जन आया, लिविंग बाइबल आई, फिर गुड न्यूज़ बाइबल आई, गुड स्पीड बाइबल आई, एम्पलीफाइड वर्जन आया, और कई कोलोकियलिज्म में, इंग्लिश की कोलोकियल लैंग्वेज में कई बाइबल आ गई। अमेरिकन टंग के अंदर अमेरिकन फ्रेजेज आ गई, उसके अंदर अमेरिकन स्लैंग्स डाली गई। ब्रिटिश लोगों ने ब्रिटिश इंग्लिश के लिए कंपैटिबल किया, यूरोप ने यूरोपियन लोगों के लिए उसे कंपैटिबल किया। तो बाइबल को धीरे 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 अलग अलग ट्रांसलेशन शेड्स लाते लाते करप्ट करना शुरू किया गया। हालेलुया। आपको मालूम कितना लूसीफर जो वर्ड इंजेक्ट किया गया, लूसीफर का मतलब है लाइट बेयरर, रोशनी को लेके जाने वाला। जैसे रेवलेशन 22:16 में यीशु मसीह अपने आप को कहते हैं ना, आई एम द ब्राइट एंड द मॉर्निंग स्टार। कुछ ट्रांसलेशन जो लूसीफेरियनिज्म की तरफ झुक रही हैं, कुछ ऐसे वर्जन्स हैं भाई और बहनों जिनके अंदर पैसा लगा हुआ है लूसीफेरियंस का, और पैसा लगाया है फ्री मेसनरी लोगों ने, पैसा लगाया है उसकी ट्रांसलेशन में इल्यूमिनाटी वाले लोगों ने, जो आज से 100 साल 200 साल पहले उनकी स्ट्रैटेजी थी बाइबल को करप्ट करने की। वो ऐसे पेश कर रहे हैं कि जीसस इज़ लूसीफर। आप किसी चर्च में जा सकते हो, बड़ी ज़बरदस्त वर्शिप हो रही है, बड़े बड़े ज़बरदस्त म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं, बहुत हाई प्रोफाइल म्यूज़िक है। आप सोचेंगे मैं तो आराधना कर रहा हूँ परमेश्वर की। हो सकता है आप आराधना कर रहे हो परमेश्वर की, लेकिन वहाँ पे लोग लूसीफर की आराधना कर रहे हो। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि बाइबल बताती है देयर इज़ अनदर जीसस, देयर इज़ अनदर गॉस्पल, देयर इज़ अनदर स्पिरिट, देयर इज़ अनदर चर्च। तो समझिए कि धोखा इन अंत के दिनों के अंदर शैतान लेकर आ रहा है, ट्रांसलेशंस की गड़बड़ी के द्वारा ही। आपको मालूम, सेटन जो है इज़ अ पावरफुल बीइंग। आप सेटन के संग लड़ नहीं सकते अपने आप। ही विल सिफ्ट यू,
You cannot you cannot go against him. He'll kill you. लेकिन जो आपके अंदर है यीशु नासरी, आपने नया जन्म पाया है, सचमुच आप एक पवित्र जीवन प्रभु के लिए, वो जो आपके अंदर है वो उसके ऊपर जयवंत है, और उसके लहू के द्वारा, उसके नाम के द्वारा आप उसके ऊपर जयवंत हो सकते हैं। हालेलुया। केरब जो वर्ड है, केरब हिब्रू में, केरब मीन्स वन हु ग्रैब्स, वन हु ग्रैस्प्स, वन हु कंट्रोल्स एंड वन हु डोमिनेट्स। केरब जो हैं, केरुबीम, दे आर पावर, not ordinary angels, they are not even the archangels, they are much more than that, they are power being। आपको मालूम जब एडम और ईव को यहोवा ने निकाला गार्डन ऑफ ईडन से, तो जीवन के वृक्ष की रक्षा करने के लिए और उसके मार्ग की रक्षा करने के लिए यहोवा परमेश्वर ने करुबीम को, केरब को तैनात किया, और एक फ्लेमिंग सोड को वहाँ पे तैनात कर दिया। हालेलुया। आपको मालूम उसे क्या कहा गया है? 14 अध्याय यशाया की पुस्तक और 28 चैप्टर इज़िकियल की पुस्तक में उसे एनॉइंटेड खैरब कहा गया है। एनॉइंटेड मशियाक खैरब, हम मशियाक खैरब, किसे? लूसीफर को। मशियाक का मतलब मसाया, जिसका मतलब है एनॉइंटेड वन, ग्रीक में Christ. So he is anointed one, just like Jesus. But he is not the Lord Jesus. He is not like Lord Jesus Christ. Lord Jesus Christ is Creator God. And Lucifer, or this cherubim, Cherub, anointed Cherub, he is a created being. हालेलुया। और यीशु मसीह उसको नाम से बुलाते हैं। यीशु मसीह क्या कहते हैं? गेट दी बिहाइंड मी सेटन, दूर हो जा शैतान मुझसे, हसतान कह के उसे बुलाते हैं। आपको मालूम उसका जो नए नियम में नाम है डियाबोलोस है। मैंने आपको सुबह भी बताया, डियाबोलोस का मतलब स्लेंडरर, एक्यूज़ करने वाला, दोष लगाने वाला। तो डियाबोलोस बहुत हैं, शैतान जो डियाबोलोस हैं, जिसे हम कहते हैं दुष्ट आत्माएं, वो बहुत हैं, लेकिन हसतान एक है। ये पावर बीइंग थे। आप अति पवित्र स्थान में परमेश्वर की वाचा के संदूक को देखते हैं। परमेश्वर की वाचा के संदूक के ऊपर मोल्टन गोल्ड से बने हुए हैं कैरुबीम, परमेश्वर की अति पवित्र प्रेजेंस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दे आर गार्जियंस, they are guarding the way to the tree of life, they are guarding the ark of the covenant, they are power being, they guard the sacred presence of the most high God। कवरिंग है, वो परमेश्वर की कवरिंग है। हालेलुया, कवर करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप बाइबल पढ़ेंगे प्रेरितों के काम में, तो मसीहों को सबसे पहले मसीह कहाँ कहा गया? Where were the disciples called Christians? At Antioch। हालेलुया। अंताकिया में जो विश्वासी थे उनको पहली बार क्रिश्चियन कहा गया। क्रिस्टे एडोनाय, जिसका मतलब जो क्राइस्ट का बिजनेस करते हैं, जिनके अंदर क्राइस्ट रहता है, उन लोगों ने उनको नाम दिया जब वो कहाँ थे? एंटियोक में थे। हालेलुया। एंटियोक में उन लोगों को ये नाम दिया गया। हालेलुया। अंताकिया की कलीसिया में आप ध्यान से पढ़िएगा परमेश्वर का कलाम, तो आप परमेश्वर के कलाम में देखेंगे। प्रेरितों के काम 13 अध्याय पढ़िएगा। पहली जो कलीसिया है उसका जन्म होता है यरूशलेम में। यरूशलेम में वो कलीसिया बहुत फलती फूलती है, परमेश्वर के पराक्रम के काम होते हैं, लेकिन 8 अध्याय में अचानक उस कलीसिया के ऊपर सताव आने लगता है। क्योंकि वो कलीसिया 8-9 साल तक वहीं बैठी रही।
उस कलीसिया के विश्वासी दूर दूर दराज के इलाकों में प्रभु का वचन लेकर नहीं गए। वो प्रभु की आज्ञा को भूल गए। प्रभु की आज्ञा क्या थी? प्रभु की आज्ञा थी, तुम यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और पृथ्वी के कोनों कोनों तक मेरे गवाह ठहरोगे। वो प्रभु के वचन को लेकर नहीं गए आगे, इसलिए वहाँ पे सताव आया और वो सब तितर बितर हुए। दूसरा, प्रभु ने गढ़ कलीसिया का कहाँ बनाया? 13 अध्याय प्रेरितों के काम। इन द चर्च एट एंटायोक, अंताकिया में कलीसिया कायम की प्रभु ने। जो कलीसिया यरूशलेम में थी 2 अध्याय, 4 अध्याय, 6 अध्याय, 8 अध्याय तक प्रेरितों के काम में, वो जूइश कलीसिया है। उसमें ज़्यादातर लोग यहूदियों में से प्रभु में आए हैं। लेकिन ये कलीसिया देखिए कितनी अद्भुत है। 13 अध्याय प्रेरितों के काम में, यहाँ पे अगर आप पहला वचन पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा दे वर प्रॉफिट्स एंड टीचर्स। यहाँ पे नबी भी हैं, सिखाने वाले भी हैं। बरनाबस, सिमियन ऑल्सो कॉल्ड नाइजर, लूसिसस फ्रॉम द सिटी ऑफ साइरेन, मनायन हु हैड ग्रोन अप विद हेरोड द रूलर एंड सॉल। यहाँ पे अलग अलग देशों के, अलग अलग मुल्कों के, अलग अलग कल्चर्स के लोग हैं। अफ्रीकन कल्चर के भी हैं, कॉकेशियन कल्चर के भी हैं। अलग अलग कल्चर के, अलग अलग देशों के लोग प्रभु की सेवा के लिए तैयार हो रहे हैं। यहाँ पे लिखा दे वर ऑल वर्शिपिंग द लॉर्ड एंड गिविंग ईटिंग फॉर अ सर्टेन टाइम। ड्यूरिंग दिस टाइम द होली स्पिरिट सेड अनटू देम, सेट अपार्ट फॉर मी बरनाबस एंड सॉल टू डू अ स्पेशल वर्क फॉर विच आई हैव चोजन देम। तो वो प्रार्थना करते थे, उपवास रखते थे, पवित्र आत्मा उनसे बातें करता था, प्रभु का काम उस कलीसिया के द्वारा फैलता था। ये जो कलीसिया थी एंटियोक की, ये एक अद्भुत 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 कलीसिया थी। अद्भुत किस्म के प्रभु के प्यारे प्यारे संत, प्यारे प्यारे प्रभु के अद्भुत दास इस जगह पे रहा करते थे। हालेलुया। तो मैंने जो आपको एक वचन दिया, सबसे पहले जो मैंने वचन पढ़वाया आपको वो था यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 18 वचन। और मैंने बताया कि कैसे एम्प्लीफाइड बाइबल में करप्शन की गई है। एम्प्लीफाइड बाइबल में वचन को एम्प्लीफाई करने के लिए, उसको थोड़ा और जूस ऐड करने के लिए, उसकी और डिफरेंट शेड्स ऑफ मीनिंग देने के लिए, कलाम को थोड़ा और मीठी बनाने के लिए वहाँ पे लिखा है बिगॉटन गॉड, अर्थात मरियम ने परमेश्वर को जन्म दिया। ये रोमन कैथोलिसिज्म की कोर डॉक्ट्रिन है कि मरियम परमेश्वर की माँ है। परमेश्वर की माँ नहीं है मरियम, मरियम सन ऑफ गॉड की माँ है। मरियम जो है गॉड मैन की माँ है। हालेलुया। मरियम अनादि परमेश्वर की माता नहीं, जबकि ये रोमन कैथोलिसिज्म की कोर टीचिंग है। हालेलुया। तो आपको ध्यान रखना है, समझना है। मैं अब आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने आपको सुबह बताया कि कैसे वो प्रभु के बंदे जिन्होंने मार्टिन लूथर के संग थे, जॉन हस, विलियम टिंडल और ज्विंगली, बड़े बड़े ये खुदा के अजीम स्कॉलरली लोग थे, हिब्रू, ग्रीक, लैटिन के, जिन्होंने मिलके 1611 किंग जेम्स वर्जन निकाला, जो परमेश्वर के रियल कलाम से लिया गया। किंग जेम्स वर्जन कैसे तैयार हुआ, अब मैं आपको बताता हूँ। जो हमारे पास ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट है कलाम का, सुनिए ध्यान से, बड़े गौर से सुनिएगा। जो कलीसिया के पास ओरिजिनल रिसोर्स थे, अब उसकी ओरिजिनल कॉपीज़ नहीं हैं, उनकी कुछ कॉपी वेटिकन के पास होंगी, जो कॉपी की कॉपीज़ हैं, लेकिन जो परमेश्वर के एक संपूर्ण कलाम का फाउंडेशनल टेक्स्ट है, उसे टेक्स्टस रिसेप्टस बोलते हैं। टेक्स्टस रिसेप्टस जो एक ग्रीक ट्रांसलेशन है, इसका मतलब है टेक्सस रिसेप्टस का मतलब है रिसीव्ड टेक्स्ट। इसे मेजॉरिटी टेक्स्ट भी कहा जाता है। मेजॉरिटी टेक्स्ट ये फाउंडेशन है पूरी बाइबल की। जो बाइबल का अनुवाद किया गया, तर्जुमा किया गया दुनिया की अलग अलग भाषाओं में, इस स्रोत से किया गया, टेक्स्टस रिसेप्टस से। ये यूनिवर्सल ग्रीक टेक्स्ट है, पूरे का पूरा ग्रीक टेक्स्ट है, जो ओरिजिनल हिब्रू से आगे ट्रांसलेट किया गया है। तो आपको मालूम, दो स्कॉलरली लोग खड़े हुए, वेस्टकॉट और होट।
ये बंदे रोमन कैथलिक थे, बिल्कुल सोल्ड आउट, सॉलिड इन एंड आउट रोमन कैथलिक थे, स्कॉलरली लोग थे, ग्रीक के, हिब्रू के, लैटिन के। तो इन्होंने बाइबल का एक नया वर्जन निकाला, और बाइबल का नया वर्जन निकालने के लिए एक कंसेंसस लिया गया सबसे, लेकिन इन्होंने बाइबल को ट्रांसलेट टेक्स्टस रिसेप्टस से नहीं किया। एक और टेक्स्ट है जिसे रोमन कैथोलिक चर्च यूज़ करती है, उसका नाम है एलेक्जेंड्रियन ग्रीक टेक्स्ट। एलेक्जेंड्रिया का ग्रीक टेक्स्ट है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, एलेक्जेंड्रिया इजिप्ट में नॉर्थ साइड पे एक बहुत ही प्राचीन शहर था। दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी यहाँ पे थी, स्कॉलरली लोग यहाँ पे थे, जो प्लेटोनिक इन्फ्लुएंस थी एरिस्टोटल, सोक्रेटस, प्लेटो की, उनके सारे ट्रेजर यहाँ पे रखे गए थे। तत्व ज्ञान के, इंसान के धर्म दर्शन के, अलग अलग कल्चर, अलग अलग संस्कृतियों का धर्म दर्शन, हर तरह की ह्यूमन फिलॉसफी, हर तरह के मनुष्य के ज्ञान की पीएचडीज यहाँ पे की जाती थी। तो एलेक्जेंड्रिया में एक टेक्स्ट डेवलप किया गया, ट्रांसलेट किया गया, जो टेक्स्टस रिसेप्टस नहीं था ओरिजिनल टेक्स्ट, उसको इन लोगों ने यूज़ किया। किसने? दो बंदों ने, वेस्टकॉट एंड हॉट ने। टेक्स्ट ऑफ एलेक्जेंड्रिया, आपको मालूम जो ओरिजिनल बाइबल की ट्रांसलेशन की गई उसमें कितने अद्भुत प्रभु के भक्त थे। वो घुटने टेक के परमेश्वर के चरणों में समय बिताने वाले भक्त थे, और उतने ही ज़्यादा स्कॉलरली लोग थे। हिब्रू, ग्रीक, लैटिन, स्पेनिश, दुनिया की भाषाओं के ज्ञानी थे, ग्रामर के बहुत प्रचंड विद्वान थे वो लोग, जैसे इरास्मस, स्टीफनस, जीवा, कोलोनियस एंड बेसा। ये वो लोग हैं जिन्होंने ये आप हमारा जो टेक्स्टस रिसेप्टस है, इससे बाइबल की ट्रांसलेशन की है। इन लोगों की कंट्रीब्यूशन से किंग जेम्स 1611 में ट्रांसलेट हुआ। लेकिन ये जो बंदे थे जिनका मैंने अभी आपको नाम बताया, आप इनके विषय में पढ़िए और थोड़ा अध्ययन कीजिए। वेस्टकॉट और होट, इन लोगों ने परमेश्वर के सच्चे कलाम को इस्तेमाल नहीं किया। आप अगर रिसर्च करेंगे, एलेक्जेंड्रिया में एक लाइब्रेरी थी, दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी, उसे आग लग गई। इट वॉज अ रिपोजिटोरी ऑफ ग्रेट ट्रेजर, बट इट वॉज बर्न्ड, जला दी गई। आपको मालूम, प्रभु यीशु मसीह एक बात कहते हैं बड़ी अद्भुत। यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य में एक बात कहते हैं परगमम की कलीसिया के लिए। मैंने आपको 7 कलीसियाओं के ऊपर बहुत अद्भुत शिक्षा दी है, आप जाके उसका अध्ययन कर सकते हैं। परगमम एक बहुत बड़ा सबर्ब थी परगमम, और प्रभु कहते हैं कि शैतान की सीट है वहाँ पे परगमम में। परगमम के अंदर क्या था? जूस देवता का टेम्पल था। जूस यूनानियों का देवता था जिसे सूअर चढ़ाए जाते थे। सैरो-फिनीशियन के इलाके में वो व्यक्ति जिसे बदरुओं ने जकड़ा था, जिसकी बदरुएं यीशु मसीह ने सूरों में डाली, वहाँ पे भी जूस की पूजा होती थी। वो भेंटें सूरों की जूस को चढ़नी थी। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह आ गया, उसने उस व्यक्ति को नया जीवन दिया। तो परगमम में अगर आप अभी भी जाओ, लेकिन उस समय इट वॉज सच अ ब्रेथ टेकिंग सिटी, एक बहुत बड़ा सेंटर था, ये सेंटर ऑफ आर्ट एंड लर्निंग। इट हैड द सीट ऑफ लर्निंग। एंशिएंट टाइम में ये कहा जाता था परगमम हैज़ अ सीट ऑफ लर्निंग, और परगमम में सीट ऑफ सेटन भी थी, शैतान का सिंहासन भी था, और पढ़ाई लिखाई का सिंहासन भी था। एलेक्जेंड्रिया की तरह वहाँ पे यूनिवर्सिटी थी। अगर आप पहाड़ पे खड़े होकर परगमम के नीचे देखेंगे राइट साइड पे, तो रोमन एम्पी थिएटर दिखाई देगा। अगर वहाँ से लेफ़्ट साइड की तराई के अंदर देखेंगे तो आपको सीट ऑफ मेडिसन दिखाई देगी। सीट ऑफ मेडिसन, आपने देखा होगा मेडिकल का चिन्ह कि ऐसे 2 सांप गोल गोल चढ़ते जा रहे हैं ऊपर, स्कैबुलस। यहाँ पे ये टेम्पल था एक देवता का, जहाँ पे सांप चंगाई देता था। प्राचीन समय में सांप को हीलिंग का चिन्ह माना जाता था।
सांप हीलिंग से ज्ञान था, फिलॉसफी थी, तत्व ज्ञान था, दुनिया का वर्ल्डली विजडम यहाँ पे मिलती थी। अलेक्जेंड्रिया में भी दुनिया का ज्ञान था, दुनिया की का था, क्वांटम फिजिक्स का, एमबीए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, जेनेरिक साइंस, you can have any kind of knowledge, any kind of PhD. That knowledge was so vast in Pergamum and also in Alexandria. So what text did Westcott and Hort use? The Alexandrian. Roman Catholic Church does not use the Textus Receptus. Textus Receptus का मतलब है परमेश्वर के संतों को दिया गया परमेश्वर का ज्ञान। हालेलुया, रेवलेशन ऑफ गॉड, जो भक्ति पूर्ण ढंग से उसके चरणों में उससे बुद्धि मांगने के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा दिया जाता है सच्चा ज्ञान। वो ज्ञान नहीं भाई और बहनों, बल्कि परगमम का और एलेक्जेंड्रिया का ज्ञान, जो संसारिक ज्ञान है, भौतिक ज्ञान है, जो लूसीफर की इलिमिनेशन के द्वारा, लूसीफेरियन लोग मानते हैं कि लूसीफर इल्यूमिनेट्स, इसीलिए वो इल्यूमिनाटी कहलाते हैं फ्री मैसनरी में। इनको एक गुप्त आंतरिक ज्ञान मिला हुआ है। तो यहोवा का की फिलॉसफी के ऊपर, इंसान के तत्व ज्ञान के ऊपर, जगत की बुद्धि के ऊपर नहीं है। ये जगत की बुद्धि परमेश्वर की सामने मूर्खता है। परमेश्वर ने ये जो क्रूस का पैगाम हमें दिया है, हालेलुया। प्रेरित पौलुस कहता है क्रूस का ये पैगाम जगत के लिए तो मूर्खता है, लेकिन हमारे लिए, हम जो उद्धार पाने वाले हैं, हमारे लिए परमेश्वर की सामर्थ है, हालेलुया। परमेश्वर क्रूस की मूर्खता से जगत को बचा रहा है, क्योंकि जगत की बुद्धि, ज्ञान, तत्व ज्ञान, दार्शनिकता, फील्ड की नॉलेज कूड़ा करकट के समान है। लेकिन आप देखिए, ये जो मैंने आपको पढ़ के बताया, एम्पलीफाइड वर्जन, जॉन चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 18, योना रचित सुसमाचार पहले रहेगा 18 वचन जो मैंने पढ़ के बताया, एम्पलीफाइड वर्जन वाला क्या कह रहा है बंदा? बिगॉटन गॉड, कि परमेश्वर पैदा हुआ है। देख रहे हैं आप, गॉड इज नेवर बॉर्न, इट इज गॉड मैन हु वाज बॉर्न। तो ये जो कलाम है सच्चा, ये टेक्स्टस रिसेप्टस है, इसके संग जुड़ना है आपने। आज प्रचारक लोगों को ये नहीं सिखा रहे टेक्स्टस रिसेप्टस, वो लोगों को एलेक्जेंड्रियन टेक्स्ट सिखा रहे हैं, लूसीफेरियन टीचिंग दे रहे हैं, फ्री मेसनरी टीचिंग दे रहे हैं, वो लोगों को थियोसॉफी सिखा रहे हैं, वो लोगों को पॉजिटिव थिंकिंग सिखा रहे हैं, मेटाफिजिकल साइंस सिखा रहे हैं, साइकोलॉजी में से प्रीच कर रहे हैं, वो लोगों को वर्ल्डली मैनेजमेंट के प्रिंसिपल सिखा रहे हैं, वो लोगों को संसारिक प्रिंसिपल सिखा रहे हैं, कैसे बिजनेस को ग्रो करना है, कैसे गोल्ड में और सिल्वर में पैसा लगाना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है। यहोवा का कलाम नहीं सिखा रहे ये झूठे लोग। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं आपको? ये अंताकिया के वो लोग हैं, प्रभु के सच्चे दास, जिनके पास टेक्स्टस रिसेप्टस है, सच्चा और जीवित परमेश्वर का कलाम इन लोगों के पास था। इस सच्चे और जीवित कलाम के द्वारा, हालेलुया हालेलुया, ये सच्चे और जीवित कलाम से दूर नहीं होना। ये टेक्स्टस रिसेप्टस जो है, सच्चा जो कलाम है, ये आपको तंग फाटक में से प्रवेश करवाता है, ये आपको तंग मार्ग पे लेके चलता है, ये आपको क्रूस उठा के मसीह के पीछे चलने की प्रेरणा देता है, ये आपको शरीर की अभिलाषाओं को क्रूस पे चढ़ाने की शिक्षा देता है, ये आपको शिक्षा देता है दुख भोग के जगत में हम परमेश्वर के राज्य में दाखिल हों, हालेलुया। ये आपको शिक्षा देता है इस संसार की किसी शय से प्रेम नहीं करना, प्रभु यीशु मसीह से बढ़ के। ये मार्ग आपको ये सिखाता है कि यीशु मसीह ही प्रॉस्पेरिटी है। जिसके जीवन में यीशु मसीह आएगा
उसके जीवन में स्वयं सच्ची प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो अंताकिया की कलीसिया के लोग जो है ये परमेश्वर से रेवलेशन लेते हैं, सच्चा घुटने टेक के, प्रार्थना करके, पवित्र जीवन जी के, धर्मी जीवन जी के, पवित्र आत्मा के द्वारा होली स्पिरिट इन्हें सिखाता है। ये संसार में अलेक्जेंड्रिया में या परगमम जहाँ पे सीट ऑफ लर्निंग है वहाँ का ज्ञान हासिल नहीं करते। आपको मालूम ये जो बेस्कॉट है और होट है जिन्होंने ये ट्रांसलेशन की हैं, जो नई मॉडर्न ट्रांसलेशन आई हैं, NIV इंक्लूडिंग सारी ट्रांसलेशन, दुख की बात यह है कि अब सारी ट्रांसलेशन की वहाँ से गई हैं। ये लोग कौन थे भाई और बहनों? ये कौन लोग थे? ये लोग वो लोग हैं जो मरियम को परमेश्वर की माँ मानते थे, और ये वो लोग हैं जो निक्रोमेंसी करते थे, मुर्दा आत्माओं से बातें भी करते थे। ये वो लोग हैं जो रूहों को चैनल करते थे, रूहों के द्वारा ज्ञान लेते थे। ये वर्जन मैरी की पूजा करते थे, नेक्रोमेंसी करते थे, स्पिरिटिस्ट थे, स्पिरिचुअलिज्म में विश्वास करते थे। दे वुड कॉल स्पिरिट्स फॉर चैनलाइजिंग, स्पिरिट वुड स्पीक एंड गिव देम इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। मैं आज आपको सुबह बता रहा था मैडम हेलेना ब्लवास्की के विषय में, जिसने थियोसॉफी शुरू की। बिल्कुल बाइबल की तरह है थियोसॉफी, बाइबल इस्तेमाल की जाती है, आपको मालूम ही नहीं लगेगा। आप सोचेंगे क्रिश्चियनिटी की बहुत ही इंटेलेक्चुअल फॉर्म है ये, लेकिन वो चैनल करते थे स्पिरिट। हेलेना ब्लोवास्की ने जितने ग्रंथ और किताबें लिखी हैं, बदरुएं उसके शरीर में आती थी और आकर बोलती थी, और वो सब कुछ लिखती थी उनके द्वारा, बिल्कुल वैसे जैसे पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है। आप पवित्र आत्मा से भरते हैं, आप अन्य अन्य भाषा बोलते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा भविष्यवाणी करते हैं, वैसे ये मुर्दा लोगों की बदरुएं, शैतानी आत्माएं इनके अंदर आती हैं और इनको ये ज्ञान देती हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्टस रिसेप्टस था, ये यहोवा का रेवलेशन है। इसे साधारण लोगों ने प्रिजर्व किया। मैंने आपको उन प्रभु के अद्भुत दासों के नाम बताए, अर्ली चर्च फादर इरास्मस, स्टेफनस, जीवा, कोलेनियस, बेसा। ये खुदा के वो संत बंदे हैं जिन्होंने इस कलाम को प्रिजर्व किया। आपको मालूम 5000 प्राचीन राइटिंगों को, बुक्स को इकट्ठा किया गया, 5000 ह्यूज बॉडी ऑफ टेक्स्ट, उस सब को मिलाया गया, और उसमें से जो भी मटेरियल उनको लगा कि परमेश्वर के कलाम से मेल नहीं खाता, उसे जगह नहीं दी गई। आपको मालूम बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई। कुछ और संत थे जो और कुछ कलाम को इसके अंदर ऐड करना चाहते थे, जैसे साइनेटिकस वेटिकनस, एक पूरा बुक का संग्रह है, उसको इसके अंदर इन सच्चे संतों ने ऐड नहीं होने दिया। वॉशिंगटोनियस का था पूरा काम, वो इसके अंदर ऐड नहीं होने दिया। फिर एक मंक को मिला, एक मंक को जिसका नाम था थियोडोरस, उसको एक बास्केट के अंदर मिला, लेकिन वो भी इसके अंदर ऐड नहीं किया गया। एग्जैक्टली वो ऐड किया गया कलाम जो परमेश्वर ने चाहा टेक्स्टस रिसेप्टस का हिस्सा बने। लेकिन बेस्कॉट और हॉट ने क्या किया, इसको पुश कर दिया ओरिजिनल ट्रांसलेशन को। जो ट्रांसलेशंस उन्होंने निकाली मॉडर्न टाइम के अंदर, वो ट्रांसलेशन उन्होंने टेक्स्टस रिसेप्टस से ली ही नहीं, वो उन्होंने ली अलेक्जेंड्रियन टेक्स्ट से। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो बाइबल के ओरिजिनल अनुवाद, अब तो प्रभु ही जानता है कि कितने ओरिजिनल अनुवाद हैं। कुछ 100-150 से ज़्यादा इंग्लिश की बाइबल ट्रांसलेशंस तो मैं जानता हूँ, बहुत सारी तो मैं पढ़ चुका हूँ, लेकिन ये कुछ भी नहीं है जितना मैंने पढ़ा है। शायद 600-700 से ज़्यादा इंग्लिश वर्जन होंगे, और मैंने हो सकता है 100 या 125 के करीब पढ़े हों। बहुत सारे लोगों ने तो बहुत कम पढ़ा हुआ है, फिर भी बहस करते हैं बिना ज्ञान के। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इग्नोरेंस इज़ नो ब्लिस। आपको इन अंत के दिनों में अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा प्रभु अच्छे कलाम में। बहुत सारी ऐसी चर्चेज हैं जो ये सिखा रही हैं कि लूसीफर इज़ जीसस, जीसस एंड लूसीफर आर सिनोनिमस।
तो इस तरह का अंधकार का समय पृथ्वी पे आ रहा है। इसलिए हम प्रभु के वचन से अपने आप को तैयार करें, लेकिन घुट के जीवन के द्वारा, परमेश्वर के सामने पवित्र धर्मी जीवन के द्वारा, हालेलुया, रोशनी में बने हुए जीवन के, केवल इंटेलेक्चुअलिज्म के द्वारा, केवल ज्ञान के द्वारा ये काम नहीं होगा। हालेलुया।